What was operating principle of potentiometer? Can anybody tell me? The potential difference PD across the balancing length of the primary circuit is equal to the PD across the secondary circuit. Very correct. Potential drop across the balancing length of the primary circuit, is always equal to potential drop of the potential drop across the secondary circuit. I hope everybody now knows what is the operating principle for potentiometer. Any confusion to anyone as far as the operating principle is concerned? No, sir. Now, the first application, potential drop across the secondary circuit. So this becomes my operating principle. Please do remember this as a thumb rule for understanding or solving any potentiometer circuit. Now, let us take the first application of potentiometer to find the value of any unknown EMF. So with the help of potentiometer, the first use is to find the value of an unknown EMF. So do you all remember how to draw the primary circuit of potentiometer? Yes, sir. So let us go ahead. Let us make that primary circuit. In the primary circuit, we used to have first a potentiometer via AB, isn't it? Yes or no? Whose resistance was RW and whose length was L. Okay? And then what we used to do, we used to connect some unknown sorry, we used to connect a driver cell. So this becomes our driver cell. It is known as driver cell, whose EMF was E, whose internal resistance might be small r. Then we used to have a key, and then there was some known resistance. Okay, then there was some known resistance RB. Isn't this much what is basically going to make a primary circuit of the primary circuit. Yeah, this makes the primary circuit of the potentiometer. Now, suppose I want to find some unknown EMF. So what I'm going to do, I'm going to connect this unknown EMF. So this is some unknown EMF or dry cell or anything that whose potential I have to find out. So I am having a dry cell or unknown EMF. So let's call it as unknown EMF presently. So this is our unknown EMF. ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अननोन EMF. इसका वोल्टेज अभी मैं V मान लेता हूं. अब इस अननोन EMF के साथ क्या क्या चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा हमें? हम लोगों को एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना अननोन EMF के साथ. ये अननोन EMF हो गया, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया. और फिर जॉकी के साथ हम लोग इसको प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर के साथ अटैच कर देते हैं. तो कुछ इस तरीके से आपका ये सर्किट तैयार हो गया टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन EMF V. अब करोगे क्या? स्टेप 1 क्या होता है? ये जॉकी है, ये अननोन EMF है, और G स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ जॉकी, with the trial and error method. ठीक है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड. अभी ट्रायल एंड एरर मेथड क्या हुआ? अरे कुल मिला जुला के सीधा सीधा हिंदी में बोले तो तुक्का लगाना. हम जॉकी को इधर ले जाके रखेंगे, ठीक है, J' या J1 पोजीशन पे,
या जॉकी को किसी और पोजीशन पे ले जाके रखेंगे, मान लो J2 पोजीशंस पे। ऐसे मैं जॉकी को अलग अलग पोजीशंस पे ले जाके रखूंगा और ट्राई करूंगा एक ऐसा पॉइंट ढूंढने के लिए जहां पर गैल्वेनोमीटर इज गोइंग टू शो नो डिफ्लेक्शन। यानी विद द हेल्प ऑफ जॉकी or with the help of jockey and trial and error technique method, what we are going to do, we try to locate क्या लोकेट, नल पोजीशन। तो ये बन गई आपकी पहला काम। जब आपने सर्किट तैयार कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू रिक्वायर टू प्लेस द जॉकी एट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर और दिस स्लाइड वायर। इस स्लाइड वायर के डिफरेंट पोर्शन पे तुम जॉकी को प्लेस करते हो और क्या ढूंढ रहे होते हो बच्चों, तुम ढूंढ रहे होते हो नल पोजीशन। मान लो ये नल पोजीशन किसी पॉइंट एक्स पे आके मिला, ठीक है। तो जब तुम्हें नल पोजीशन मिल गया, उस समय क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या स्टेप किया, विद द हेल्प ऑफ trial and error method, what we are doing, we are trying to locate the null position, and in the null condition position, what is going to happen, the current flowing through the jockey will become equal to the current flowing through the galvanometer becomes equal to 0। तो जब तुमने ट्रायल एंड एरर मेथड से नल पोजीशन ढूंढ लिया, तो इसमें करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगी, 0। और बच्चों जब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाती, तो सिचुएशन में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस balancing length, potential drop across balancing length becomes equal to potential drop connected in the secondary circuit। clear बात है इतनी? is that much clear? Yes, sir. अब पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ क्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा, वो हो जाएगा, इस केस में x पे मिला है तो kx must be equals to potential connected in the secondary is V। so with the help of this you will be able to find out the unknown EMF connected or given to you। क्लियर हो गई बात इतनी? क्लियर है? तो what is this x? x is the balancing length। So I hope you all have understood what are the basic steps involved। In the basic steps you need to frame the primary circuit। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट को बनाना है। प्राइमरी सर्किट के पैरेलल में तुम्हें ये सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट करना है। सेकेंडरी सर्किट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ध्यान रखना है, सेकेंडरी सर्किट हमेशा प्राइमरी सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट हुआ। और जब तुमने इनका कनेक्शन कर दिया, तो अब तुम्हें करना क्या था, जॉकी को डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस करके, किसके डिफरेंट पोजीशन पे, सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्लाइड वायर, डिफरेंट पोजीशंस ऑन द स्लाइड वायर के डिफरेंट पोजीशंस पे जॉकी को प्लेस करके क्या ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढते हो नल पोजीशन। और जब बच्चों नल पोजीशन मिल गई, तो वहां पर क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी 0। और जब ये ऐसी पोजीशन आ जाएगी, जब ऐसी कंडीशन आपने अटेन कर ली जहां पर नल पोजीशन मिल गया या करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो गया, तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर कम्स इनटू एक्शन। और वो क्या कहता है कि जो कुछ भी बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, वो सेकेंडरी सर्किट में कनेक्टेड अननोन ईएमएफ के बराबर होगा। तो kx मस्ट बी इक्वल टू v। k क्या होता है बच्चों, वेयर k इज, k क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। राबिया, कैन यू हियर, Yes, sir. can you define potential gradient? No, sir. Start learning of the definitions, Rabia। Okay, now let's move on to the second use। Zainab, can you describe, can you define potential gradient? Zainab, I'm waiting for your answer। Sir, is it the length of the wire? Potential gradient is the length of the wire, then I would have called it as length of the wire। I am going to give a new term to it। No, sir. No, sir. No, sir.
Rabia, Zainab, can you answer what is potential gradient? No, sir, I don't remember the definition right. Can you turn up the pages and see, Sure, sir. please? Asna, with the help of. Yes, sir. Can you define? No, sir. I'm Look up. Are potential gradient. Kratika, can you define potential gradient? Okay. Potential drop per unit length of the resistance wire. Potential drop per unit length of the Resistance wire. resistance wire या potentiometer wire. Potential drop per unit length. बच्चों ये बेसिक है पोटेंशियोमीटर का, तो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रखना. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, इसी को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी सिंबल के से डिनोट करते हो. तो प्लीज डू टेक केयर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या होगी एसआई यूनिट? वोल्ट पर मीटर. So volt per meter. ओके. अब देखो फिर से हम लोग अब दो अननोन ईएमएफ का कंपैरिजन करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. कैसे दो अननोन ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों? प्राइमरी सर्किट तो फिर से वही बनेगा. क्या होता है प्राइमरी सर्किट में? एक बार जाए बोलते चलो मेरे साथ साथ. क्या पहली चीज क्या होगी? व्हाट इज दिस? sir resistance Slide wire. wire. रेजिस्टेंस वायर Resistance wire. या स्लाइड वायर. ठीक बात है. फिर इसके साथ क्या कनेक्ट करते हो बच्चों? Driver cell. ड्राइवर सेल. तो पहले तो इसका रेजिस्टेंस लिख दे वायर का, RW, और लेंथ हो गया L. ठीक है. फिर इसके साथ सीरीज में क्या कनेक्ट करेंगे? एक ड्राइवर सेल. इस ड्राइवर सेल का सर, अगर हम लोग ड्राइवर सेल को बैटरी बोले तो गलत होगा. नहीं, कोई गलत नहीं होगा. ड्राइवर सेल को ड्राइवर बैटरी बोल दो, पावर सप्लाई बोल दो, EMF E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R. फिर क्या कनेक्ट करते थे बच्चों? So key. सर की और फिर की के बाद क्या कनेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस box. Resistance box. रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर नॉन रेजिस्टेंस. ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस. ठीक, क्लियर है? दिस इज अ नॉन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसका रेजिस्टेंस ले लेते थे RB. ड्राइवर सेल का फंक्शन क्या होता था? Provide some EMF या voltage PD. It develops a potential drop across the slide wire, so some current IP flows through the प्राइमरी सर्किट. तो इसका मेजर काम क्या है? करंट को डेवलप करना, पोटेंशियल ड्रॉप को डेवलप करना, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डेवलप करना. जब सर्किट कंप्लीट हो, करंट चलेगा, तभी ये सारी चीजें थी. समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये बन गया आपका प्राइमरी सर्किट. तो जैसा पहले प्राइमरी सर्किट बनाया, ठीक उसी तरह से फिर से हम लोगों ने एक प्राइमरी सर्किट को बनाया. अब सेकेंडरी सर्किट के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है बच्चों? सेकेंडरी सर्किट में हम क्या लेंगे? सेकेंडरी सर्किट में हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे वो सेल जिसका ईएमएफ हमें फाइंड करना. तो सबसे पहले हम वो, अब यहां पर दो अननोन ईएमएफ फाइंड करने, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट में मैं पहला ईएमएफ बैटरी V1 कनेक्ट कर रहा हूं. ठीक है, ये बैटरी V1 कनेक्ट कर दिया. समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर. ठीक. और इसी के पैरेलल में एक दूसरी बैटरी जो मुझे जरूरत है, दोनों कंपैरिजन करना, तो दूसरी वाली बैटरी भी कनेक्ट कर देता हूं, इसको V2 कह देता हूं. या अभी इसको इस तरह समझो कि पहले मैंने सबसे पहली सर्किट बनाई, उसमें सबसे पहला बैटरी V1 को लिया, और फिर क्या कनेक्ट करते थे बच्चा? बैटरी के साथ जो अननोन Galvanometer. Galvanometer. और फिर क्या करते थे हम लोग? Sir jockey. Key connect. और इन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करते थे? ये बन गया आपका सेकेंडरी सर्किट. प्राइमरी और Sir सेकेंडरी parallel. ध्यान रखिएगा. वाइवा, हाँ, वाइवा वगैरह जब आपके टीचर, आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछो, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस.
तो प्राइमरी सर्किट के पैरेलल में आप सेकेंडरी सर्किट को ले जाके कनेक्ट करते थे। अब इसके बाद कैसे इस सर्किट का काम इस्तेमाल में आता था भाई बताओ जरा। व्हाट यू यूज्ड टू डू विद द हेल्प ऑफ या बाय द मेथड ऑफ? ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। नहीं, बाय द मेथड ऑफ क्या, कौन सा मेथड था? बाय द Trial and error. Sir, trial and error. गुड, बाय द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। क्या ढूंढोगे? Sir, null position. Try to locate null position. Try to locate null position. और जब null position मिल जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होता है? Sir, IG is equals to 0. Very good. IG is equal to 0. IG is equals to 0. Current flowing through the galvanometer becomes 0. और जब current flowing through the galvanometer 0 हो गया तब क्या होगा? Then the operating principle of potentiometer starts working. And what is that operating principle of potentiometer? That is the potential drop across balancing length. किसके बराबर बन जाती है? Sir, secondary. Potential drop across secondary circuit. Secondary circuit. क्लियर है बच्चा? ये है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अब बताओ, अगर मान लो मैंने पहली बैटरी V1 ली और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ मिलती है मुझे L1, ठीक है, ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिलती है? L1। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ कितना हो जाएगा? KL1 is equal to V1. फॉर बैटरी 1, L1 is equal to V. very good Rabia. If balancing length is L1, if balancing length is L1, then क्या हम कह सकते हैं? K L1 is equals to V1। क्लियर हो गई बात? V1। Yes, sir. Yes, sir. V1 क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसकी बैटरी को V1 से डिनोट कर रखा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करोगे? इस V1 बैटरी को हटा दोगे, V1 बैटरी को रिप्लेस करोगे और क्या करेंगे हम? V1 बैटरी को रिप्लेस करके एक नई बैटरी लगाएंगे जिसका नाम है V2। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिप्लेसिंग V1 एंड आई एम कनेक्टिंग अ न्यू बैटरी V2। So I have replaced V1 and connected a new battery V2। Clear है बात? Yes, sir. Yes, sir. So now what we are going to do, we will replace V1 with second battery and फिर से क्या करेंगे? And try to locate, क्या locate? Null position. Try to locate The null position. Let's say the null position now comes at L2. Let's say for battery 2, balancing length is L2। तो बच्चों अब जो बैलेंसिंग लेंथ मिली वो यहां ना मिली, अब कहीं और जाके मिलती है। कहां पे मिल रही है बैलेंसिंग लेंथ? आपको L2 पे मिल रही है। तो अब क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की मदद से हमें पता चलेगा? प्रिंसिपल तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अभी भी सही है। देन अब क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? K2 is equal to V2. Very good, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। And then what we are going to do, we are going to divide equation 1 and equation 2, divide equation 1 with equation 2, then you will have KL1 is equals to V1 divided by KL2 V2
potential gradient being same because the primary circuit is same, cancels out, or V1 upon V2 is equals to L1 upon L2. Is that clear? Yes, sir. So with the help Yes, sir. with the help of this formula, yeah, with the help of this method, you can always compare two unknown EMF. तो बच्चों अब इस सर्किट को देखो, यहाँ पे हम लोगों ने दो सर्किट में दो बार, एक बार V1 लगाया, एक बार V2 लगाया। अब जब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड्स वगैरह में सर्किट को ड्रॉ करने के लिए आता है, तो एक ही सर्किट में मैं दोनों काम करके बना दे रहा हूं ताकि तुम लोग इस बात को समझ सको। एक ही सिंगल सर्किट से दोनों ही काम हो जाएंगे। ये हमारा स्लाइड वायर हो गया, ठीक है, ये A हो गया, ये B। प्राइमरी सर्किट तो उसी तरह से बनाया हमने, कैसे? ड्राइवर सेल लगाया E, इसका EMF R, फिर क्या कनेक्ट करना होता है हम लोगों को? की, और की के बाद क्या कनेक्ट करते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बॉक्स। बॉक्स, जिसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहता है। अब देखो सेकेंडरी सर्किट को किस तरह से मैं बना रहा हूं, थोड़ा स्मार्टली ड्रॉ कर देते ताकि दोनों बात आ जाए। तो पहले हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये अननोन EMF V1 है, और इसी के साथ हमने एक अननोन EMF V2 को कनेक्ट कर दिया। दोनों कैसे कनेक्ट कर दिया? आपस में पैरेलल में, देख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक डबल थ्रो स्विच लगा दूंगा, ठीक है। ये एक टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल, और ऐसे डबल थ्रो स्विच लगा दिया। और इस डबल थ्रो स्विच से ये गैल्वेनोमीटर और जॉकी यूं कनेक्ट कर दिया, और ये A पॉइंट से। अब देखो जब डबल थ्रो स्विच 1 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी V1 कनेक्ट हो जाएगी बच्चों, और जब डबल थ्रो स्विच को पॉइंट 2 से कनेक्ट कर दूंगा तो कौन सी बैटरी कनेक्ट हो जाएगी? V2। तो अब पहले पार्ट के सर्किट में बैटरी को पॉइंट 1 से कनेक्ट करेंगे, डबल थ्रो स्विच को, दिस इज नोन एज डबल थ्रो switch. So by connecting double throw switch at point 1, V1 battery gets connected and you locate a null position L1, and then by connecting the double throw switch at point 2, you connect the second battery, and once again you try to find out the balancing length, and this length comes out to be L2. The same methodology follows, and then you can compare using this particular formula. I hope this is clearly understood by all of you. Now, this is the third use of potentiometer. और इस थर्ड यूज में क्या करना है हम लोगों को? We will try to determine the internal resistance of a given dry cell. तो हम लोग इस यूज में पोटेंशियोमीटर के इस यूज में सीखेंगे कि भाई किस तरह से पोटेंशियोमीटर की मदद से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी गिवन ड्राई सेल। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या है, फिर से हम लोग एक बार प्राइमरी सर्किट बनाते हैं पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट में सबसे पहली चीज जो आप इस्तेमाल में लाते हो वो है स्लाइड वायर। तो ये हमारा स्लाइड वायर हो गया, ठीक है, ये A, ये B। और बच्चों इस स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस हम लोग RW और लेंथ को L मान लेते हैं, जैसे पहले कर रहे थे। अब इस स्लाइड वायर में और क्या क्या कनेक्ट करते हैं? तो एक ड्राइवर सेल कनेक्ट कर देते हैं, ये ड्राइवर सेल हो गया जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। फिर एक की और कोई नॉन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स या नॉन रेजिस्टेंस है जिसका काम क्या होता है? टू लिमिट द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट। तो बच्चों इस तरह से ये आपका प्राइमरी सर्किट तैयार हो जाता है। इसमें आपने एक नॉन रेजिस्टेंस आर भी कनेक्ट कर दिया है, और इसके बाद इसमें कुछ करंट फ्लो करने लगेगा जिसको हम लोग आईपी यानी प्राइमरी सर्किट का करंट से डिनोट कर रहे हैं। नाउ in this case, for the secondary circuit, what we are going to do, the secondary circuit is going to be made with the help of the dry cell. बच्चों तो जो ड्राई सेल है जिसका इंटरनल EMF आपको, सॉरी, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, लेट्स कॉल दैट इंटरनल रेजिस्टेंस एज R डैश, और इसका कुछ EMF है, लेट्स कॉल इट एज V और इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश।
इस ड्राई सेल को हम लोग किसी एक नॉन रेजिस्टेंस, अब बच्चों ये हमारे पास एक नॉन रेजिस्टेंस है, इस नॉन रेजिस्टेंस को मैं R से डिनोट कर रहा हूं, के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो अब अगर तुम देखोगे तो सेकेंडरी सर्किट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज्ड है। यहाँ पे हमें ये ड्राई सेल दिया हुआ, उस ड्राई सेल को हमने कनेक्ट किया है एक नॉन रेजिस्टेंस से, R से, एक की K डैश से या की K से, फिर एक गैल्वेनोमीटर होगा और वापस से एक जॉकी होगा। अब हम लोग बच्चों करेंगे क्या, इस सेकेंडरी सर्किट को वापस से प्राइमरी सर्किट के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट के साथ ये सेकेंडरी सर्किट अटैच हो गया, तो ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है। सो फॉर दिस वी हैव गॉट अ सेकेंडरी सर्किट in which we have got a known resistance R connected in series with a dry cell whose internal resistance R dash we need to determine. Now, to begin with, let me call this as key K1 and let us call this primary circuit case key ko K2. Okay. Now, what we are going to do, to begin with, I am going to remove this key K1. So we start the circuit, or we begin this analysis of this circuit by removing, क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे, removing key K1। तो ये जो की है, इस की को बच्चों हम लोग पहले क्या करके चलते हैं, इस की को हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। जब हमने इस की को रिमूव कर दिया, यानी ये पार्ट ऑफ द सर्किट अब आपके पास कनेक्टेड नहीं है। तो अगर ये पार्ट सर्किट का कनेक्टेड नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पार्ट सर्किट का कनेक्टेड ही नहीं है। तो अगर ये हिस्सा सर्किट का कनेक्टेड नहीं है, कुछ ये ऐसे गायब है यहाँ पे, ठीक है, ये सर्किट इतना डिस्कनेक्टेड है, तो तुम देखोगे सर्किट में क्या चीज कनेक्टेड है, सर्किट में सिर्फ ये ड्राई सेल कनेक्टेड है विद द गैल्वेनोमीटर। तो अब क्या होगा, जब इस सर्किट में ये ड्राई सेल कनेक्टेड है, तो बाय रिमूविंग K1 अब हमने सिर्फ ड्राई सेल को पोटेंशियोमीटर के सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमें करना क्या है, एंड यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या ढूंढेंगे, लोकेट कर रहे हैं, लोकेट नल पोजीशन। अब बच्चों जहां पर भी ये नल पोजीशन मिला, लेट्स से कि नल पोजीशन वाज ऑब्टेन्ड ओवर हियर, लेट्स से दिस लेंथ हैपेंस टू बी L1। तो बाय रिमूविंग की K1 हम लोगों ने किया क्या, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से लोकेट किया नल पोजीशन एट L1। देन क्या हुआ, देन तुम्हें मालूम है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ must be equal to पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सेकेंडरी सर्किट। भाई की K1 हटा हुआ, इस समय सेकेंडरी सर्किट में सिर्फ ड्राई सेल लगा है, और ड्राई सेल का EMF कितना है भी, तो मैं कह सकता हूं कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ हुआ, दैट इज KL1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू जो कुछ भी ड्राई सेल लगा हुआ था उसके EMF के बराबर भी। तो दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 1। इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now for the second part, बच्चों अब हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, once I have obtained this equation, I am going to insert key in K1. Okay, so now what we are doing, we are inserting key K1, and now अब जब तुमने की K1 इंसर्ट कर दिया, तो अब जब की K1 इंसर्ट हो गया तो तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो इंसर्टिंग की K1 and now using once again the trial and error method locate
बैलेंसिंग लेंथ और बच्चों मान लो कि अब जब तुमने की इंसर्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ जो है अब वो कुछ यहां आ जाती है, नई बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, विल ट्राई टू लोकेट द बैलेंसिंग लेंथ। लेट्स से दैट इज नाउ L2. Now you have obtained that balancing length at L2. तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अब क्या कहेगा, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ द सेकेंडरी सर्किट। तो बच्चों जब तुमने की इंसर्ट कर दिया तो तुम बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस फाइंड कर रहे हो। अब जो तुमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड किया है वो तुम्हारा फाइंड हुआ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इस सिचुएशन में जब आपने ये पोटेंशियल ड्रॉप निकाला है तो ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस निकल के आ रहा है, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा है। लेट्स कॉल इट एज VR। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेकेंडरी सर्किट इज VR और इस समय जो पोटेंशियल है, इस समय जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा वो कितना हो जाएगा, KL2। तो अब हुआ क्या, KL2 has become equal to VR and let us call this as equation number 2। क्लियर हो गई बात। तो नाउ what I have got, first I have found out the potential drop that has taken place when key was removed. In that case I have got the EMF of the dry cell और जब मैंने की इंसर्ट कर दिया बच्चों तो मुझे मिल गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। और अगर इन दोनों सर्किट्स का मैं रेशियो निकालूं तो V अपॉन V1 must be equals to KL1 upon KL2. K and K cancels out, so I will get V upon V1 is equals to L1 upon L2. Let me call this equation as equation number 3. Okay. Now let's try to analyze what is happening in our this circuit, in the secondary circuit. Now what is happening in our secondary circuit? So let's analyze secondary circuit. Now अब देखो बच्चों secondary circuit में इस समय what is the total resistance of the secondary circuit? Analyzing secondary circuit. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग secondary circuit का analyze कर रहे हैं as in secondary circuit। तो बच्चों देखो सेकेंडरी सर्किट में समय कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक तो ये नॉन रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है और एक ड्राई सेल का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है वो कितना हो गया ऑफ सेकेंडरी सर्किट। तो ये हो गया R प्लस स्मॉल r डैश। क्लियर है। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सर्किट, दैट कम्स आउट टू बी स्मॉल r डैश प्लस r। भाई यही दो तो कनेक्टेड है इस समय सर्किट में। अच्छा, व्हाट इज द EMF कनेक्टेड इन द सेकेंडरी सर्किट, तो EMF ऑफ द सेकेंडरी सर्किट कितना है बच्चों, तो EMF of the secondary circuit is V dash या V, simply V. So what is the current flowing in the secondary circuit? The current flowing in the secondary circuit will be the EMF of the secondary circuit, that is V upon the total resistance of the secondary circuit, that is RS. So that is V upon R plus R dash. Clear हो गई बात। तो यहां से हमें current flowing in the secondary circuit निकल के आ गया। Now since I know this current that is flowing through the secondary circuit, what I need to do, we are trying to find out the potential drop across this resistance. So what is the potential drop across the resistance R? So potential drop across resistance R will be PD is equals to IR. अब I कितना है, इस केस में IS है और रेजिस्टेंस R, तो IS की वैल्यू लगा दो और इसको हम लोगों ने VR से डिनोट कर रखा है बच्चों, यहां पर भी इसको VR लिख दो भाई, तो VR है, तो VR IS की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R प्लस R डैश मल्टीप्लाइड बाई R। तो
तो यहां से बच्चों या वी आर की वैल्यू क्या बन गई, थोड़ा सा उसको रीफ्रेम करके लिख देते हैं। वी आर की वैल्यू हो गई v इंटू आर अपॉन आर प्लस आर डैश। क्लियर बात है? एक सेकंड, ये हम लोगों ने v अपॉन वी आर किया था, तो यहाँ पे वी आर नीचे होना चाहिए था, ये v अपॉन वी आर, ठीक है ना, L1 अपॉन। और यहां से हम v अपॉन वी आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, r प्लस आर डैश अपॉन r निकाल लेंगे। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 4। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों बातें तो एक ही है। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो अगर इसको कंपेयर करो तो ये क्या है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू r प्लस आर डैश अपॉन r, or you can say L1 upon L2 is equals to 1 plus small r dash upon r। ये r upon r plus r dash upon r, or r dash can be written as r dash upon r can be written as, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, सॉरी, L1 upon L2 minus 1 और सिंपली r डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो बच्चों ये आपके r डैश को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ ड्राई सेल को निकालने का फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज we can use potentiometer to determine the internal resistance of a given dry cell. Thank you very much.